You are in class 6th. You should know what is water made up of. The temperature of the water increases, then the evaporation is also. इस एक्टिविटी के बेसिस पे there is a question. Evaporation takes place at room temperature also. ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में. एप्लीकेशन बेसिस देखते हैं. ओहो, सारी आइसक्रीम बर्बाद. From these examples you might see question in examination. अब वाटर अगर evaporate होगा तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी लेके भागेगा किसकी? बॉडी की. 6th क्लास में आके आपको ये पढ़ना है कि कोई भी चीज हो क्यों रही है. Each and every possible question with their perfect answers. Hello dear kiddos, welcome to YD's Concept Classes, a bridge to transform information around you into a long-lasting knowledge. Right now, we are in our 6th to 8th zone to cover chapter 8 of class 6 science, that is a journey through states of water. Water seems very easy, right? If I'll ask you what are the 3 states of water, you will immediately tell me, ma'am, solid, liquid and gases. Yes, simple. But the journey through this chapter is not going to be very simple because here, the concept or the topic which are given are in full detail with application based. So, the question that you will come see in your examination will not be very simple or straightforward. Mostly, you will find them application basis, isn't it? So, that's why I am here. Don't worry. We are going to cover this chapter with full detail and each and every possible question with their perfect answers. Got it? So, let's get started and here we go. In this heading, a journey through states of water, I believe you know the meaning of each and every word. Are you sure? In that case, what is the meaning of state? You will say, ma'am, ice, water and water vapor. Hold on. I'm not asking about the types of state. I'm asking what is the meaning of state. So let's start the chapter by understanding the meaning of state itself. Okay. So what is state? To understand this, let me give an example of a boy whose name is Bablu. ठीक है, ये देखो, ये बबलू अभी सो रहे हैं. मॉर्निंग हो गया, मम्मा ने उठा लिया. नाउ ही इज फुली अवेक एंड स्माइलिंग हैप्पी. ओके, नाउ मॉम टोल्ड नो फर्स्ट डू एक्सरसाइज. अब सुबह सुबह कोई एक्सरसाइज के लिए बोलो तो कैसा होता है? ही गॉट एंग्री. अब मम्मा ने उसको खुश करने के लिए बोला, बेटा मैंने पास्ता बनाया है. तो सुन के क्या हो गए? बबलू खुश, हैप्पी स्टेट. गॉट इट? सो इन दीज ऑल 4 कंडीशंस वाज द पर्सन सेम और डिफरेंट? पर्सन वाज सेम. And what was changed? Only the behavior. The state was changed. So state means a type of behavior, a particular type of behavior shown by any person or any object. कभी भी state जब change होता है, यानी behavior जब change होता है, तो object या person same रहता है, वो change नहीं होता. ठीक है? So state means change in behavior of something or someone at particular time. डिपेंडिंग ऑन कंडीशन. अगर कंडीशन अच्छी थी तो ये खुश हो गए, अगर मन की नहीं थी तो गुस्सा हो गए. ठीक है? सो सेम थिंग हैपेंस विद द स्टेट ऑफ वाटर एज वेल. सो व्हाट आर द 3 स्टेट्स यू नो, isn't it? Now in these 3 states, what is the basic property of water that will remain same? What is water made up of? You are in class 6th. You should know what is water made up of. है ना? For your information, I am telling you water is H2O. H capital, 2 subscript, O capital. It is the formula of water. So, whether it is this state, what are these states? Ice, water and water vapor. So, in all 3 states, the water will remain H2O only. It will not change from H2O to something else. ठीक है? So, that's why the basic property or the substance remains same. Only the physical property, वो कैसा दिख रहा है, कैसा टच में है, कैसा बिहेव कर रहा है, वो सब चेंज हो जाता है. ठीक है? समझेंगे आगे. इनको और क्या बोलते हैं? What are these ice, water, water vapor are resembling to? Ice is resembling to solid, water is resembling to liquid and water vapors are resembling to gas. ठीक है? Okay. So now you know कि ऐसे इन 3 states में water मिलता है. But have you ever wondered कि ऐसा होता क्यों है? Why this change is happening? What is the factor or the reason behind this change? Actually, the reason behind this change is temperature. इससे पहले हर चैप्टर में टेम्परेचर पढ़ा हुआ है? Yes. So now temperature. देखो क्या कर रहे हैं. आइस बिल्कुल कोल्ड, isn't it? फ्रीज्ड. उसको अगर आप हीट दे दो, गर्मी दे दो यानी. ठीक है? अगर इफ द राइज इन टेम्परेचर विल बी देयर, व्हाट विल हैपन? आइस विल स्लोली कन्वर्ट टू वाटर. ठीक है? अब वाटर को अगर वहां लेके जाना है तो आप वाटर को भी बॉइल कर दो. देखो अगर गैस पे रख दोगे तो क्या होगा? थोड़ी देर में ये मिलेगा ना आपको, वाटर वेपर्स, isn't it? So the conversion of these states are all because of the change in temperature. You should know the reason behind the change. ठीक है? Now, is it only in forward direction?
क्या ये सिर्फ आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपर यही पॉसिबल है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? क्या हम इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ले सकते? हमको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? मिल सकता है ना। कैसे, क्या करेंगे बताओ? स्टीम से अगर दोबारा वाटर चाहिए, वाटर से दोबारा अगर आइस बनाना, तो क्या करोगे? टेम्परेचर को लो कर लो, है ना। सो द टेम्परेचर एरो विल ऑल्सो रिवर्स. Temperature, you have to lower down the temperature. Got it? So all the conversion is the factor of temperature. Temperature के basis पे ही ये सब change होता है. ठीक है? Now from here we have to look into the detail that how these changes are taking place and what are the processes called, and also in our surrounding where all these things are happening, everything we have to look into detail. ठीक है? चलो आगे देखते हैं. Moving ahead, the first one, ice cream, yummy one. कौन सा फ्लेवर है? बबलगम फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, व्हाटएवर इट इज, इट्स यम, है ना, पता नहीं किसकी है. चलो आगे देखते हैं. ओहो, सारी आइसक्रीम बर्बाद. क्या हुआ ये? कौन था जिसने आइसक्रीम को फ्रिज से बाहर निकाला और छोड़ दिया? अच्छा क्या किया? देखो, अगर ये फ्रीजर में रहता तो नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता ना. यस, व्हाई? बिकॉज फ्रीजर के अंदर टेम्परेचर क्या था? बहुत ठंडा, है ना. वहां पे आइस को कुछ नहीं होता. इट वुड हैव रिमेन्ड दिस आइसक्रीम ओनली, बट बिकॉज इट वाज केप्ट आउट, देयर वाज इंक्रीज इन टेम्परेचर. हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज होते ही क्या हो गया? ये मेल्ट हो गया ना. ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या है? मेल्टिंग. गॉट इट? सो दिस इज मेल्टिंग ऑफ आइस. व्हाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर. गॉट इट? नाउ अब मान लो किसी को ये आइसक्रीम बर्बाद नहीं करनी और ये प्लेट पे रखी हुई है, तो क्या करें इसको? ऐसे अगर फटाफट से स्कूप करके अगर बाउल में डाल लो और फ्रीजर में रख दो, तो दोबारा से आइस मिल सकता है ना. मिल सकता है. यस. सो इफ वी विल कीप इट अगेन, व्हाट विल हैपन देयर इन द फ्रिज? डिक्रीज इन टेम्परेचर. जैसे ही डिक्रीज इन टेम्परेचर, क्या होगा? ये फ्रीज, isn't it? And this process will be freezing. Got it? So in melting, temperature increase, in freezing, temperature decrease. Got it? चलो देखते हैं आगे. So melting, the process of conversion of solid into liquid state is called melting. Solid से liquid मिलता है तो melting बोलते हैं. कैसे होता है? Temperature बढ़ जाता है ना. It is happening because of increase in the temperature. Freezing, the process of conversion of liquid into solid state is called freezing, and it happens by decreasing the temperature. पानी का अगर temperature decrease कर दो तो वो freeze हो जाएगा. ठीक है? Okay. Now this chart we already saw. अभी थोड़ी देर पहले देखा था. Now we have got to know the two conversions: solid to liquid, melting, and liquid to freeze, solid back is freezing. ठीक है? So now we got to know about two conversions and how they are taking place. Any problem? चलो. Moving ahead and now see why water disappears. You must have observed this in your daily life. Let me give you an example. ये देखो, very sad state for kids, है ना. शाम के टाइम पे पार्क जाओ और पार्क अगर ऐसी कंडीशन में मिले तो बड़ा दुख होता है ना. क्या है ये? मडी पडल. बट सरप्राइजिंगली इफ यू विल गो आफ्टर 2 days, दिस होल मडी पडल विल नॉट बी देयर. सारा गायब. कहाँ गया पानी? कोई लेके गया, कोई भर के ले गया. Why water disappeared? One more example. Let's say this is a plate, you have taken the water, some small amount of water for water coloring. अब उसी टाइम मम्मा ने बोला कि अच्छा स्टॉप, फर्स्ट टू ईट योर फूड और फिर कर लेना, है ना. तो हाफ एन आवर के बाद आप जाओगे, सारा पानी गायब. कहाँ गया? अगेन, व्हाई वाटर डिसअपियर्ड. थर्ड एग्जाम्पल, व्हाट इज दिस? डोसा तवा. कभी देखा डोसा बनाते हुए? अगर जो डोसा बनाने वाला होता है ना, वो ऐसे बहुत जोर से पानी छिड़कता है डोसा तवा पे और सारा पानी जूम करके गायब हो जाता है. अगेन, कहाँ जा रहा है पानी? The examples that I'm giving you are not just for making you understand. From these examples, you might see question in examination. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है? कैसे? यही कंडीशन दे देंगे, theoretically लिखा होगा और पूछेंगे why water disappeared. So I think you know the answer. Water got converted into water vapors. Yes, because water vapor is a form of gas and gas is transparent. That's why we can't see that, isn't it? और ऐसा लगता है कि गायब हो गया, disappear हो गया. ठीक है, लेकिन डिसअपियर नहीं होता. कौन सी प्रोसेस है? इवेपोरेशन. पढ़ा है ना. हाँ, देखते हैं. वाटर डिसअपियर बिकॉज वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर ड्यू टू हीट. क्या हुआ यहाँ पर? कहीं ना कहीं से हीट मिली, टेम्परेचर था, सन था बाहर, या तो कुछ हो रहा होगा जिसकी वजह से वो इवेपोरेशन हो गया, यानी कि वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, लेट्स गेट इनटू डिटेल ऑफ दिस प्रोसेस. इवेपोरेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर स्टेट. वाटर से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने को ही इवेपोरेशन बोलते हैं. बट वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फॉर दिस प्रोसेस
यू डोंट नीड टू बॉईल द वाटर। इवेपोरेशन रूम टेम्परेचर पे ही होता है। बेटा देखो, अगर बारिश हुई, मडी पडल है बाहर, है ना, अब मडी पडल 2 दिन बाद गायब, ऑल वाटर गेट्स डिसअपियर्ड। कहाँ गया? किसी ने वहां पे जाके फायर तो लगाया नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज थोड़ी किया था। वट एवर द रूम टेम्परेचर वॉज द होल डे, in that only slowly water was evaporating, and that's why it disappeared. So water, so evaporation takes place at room temperature also. Very important point, यहां से MCQ क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। टेक द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इवेपोरेशन, और वहां पे दे देंगे इवेपोरेशन टेक्स प्लेस ओनली एट बॉइलिंग या फिर आफ्टर हीटिंग इट अप। नो, इवेपोरेशन कैन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर ऑल्सो, रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और ध्यान दो, मोर विल बी द टेम्परेचर, फास्टर विल बी द इवेपोरेशन। ऑब्वियसली जितना ज्यादा टेम्परेचर वाटर का होगा उतनी जल्दी वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, तो इवेपोरेशन भी जल्दी होगा, है ना। एक गैस पे रखे हुए पानी में इवेपोरेशन जल्दी होगा कि बाहर ऐसे नॉर्मल रखे हुए पानी में? कहां पर? ऑब्वियसली गैस में रखे हुए पे, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर मिल रहा है उसको, तो फास्टर हो रही है प्रोसेस, इजंट इट। चलो, मूविंग अहेड, नाउ what we got to know, one more conversion we got to know, and what is that? From water to water vapor by the process of evaporation, ठीक है। इवेपोरेशन के बेसिस पे और किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, एप्लीकेशन बेसिस, देखते हैं आगे। इनके आंसर करो। हैंड सैनिटाइजर डिसअपियर्स एज यू रब इट इन योर हैंड। हैंड सैनिटाइजर कोविड टाइम पे कितना यूज किया था, हाँ वही हैंड सैनिटाइजर, या तो फिर नेल पेंट रिमूवर, एसीटोन, ये सारे के सारे अगर जैसे ही आप उसको रब करो तो बहुत ठंडा फील होता है और फिर वो बहुत जल्दी गायब भी हो जाते हैं। Where it gone? Where it disappeared? Because all the hand sanitizer was evaporated. Just one line answer. That's it. ये देखो, how water disappear from washed utensil? बर्तन धोए और थोड़ी देर में पानी गायब हो जाता है, सूख जाते हैं ना। Where the water disappeared? All the water converted into water vapor. इन क्वेश्चन बड़े टफ लगते हैं बेटा, लेकिन आंसर उनका वही है जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो, बस वो क्वेश्चन टफ हो गए हैं, आंसर टफ नहीं है, बस क्वेश्चन समझना है, ठीक है। चलो, मूविंग अहेड, now from evaporation we are coming to the next topic, that is humidity, because humidity is all depending on evaporation, that's why it is just next to evaporation, ठीक है। समझो humidity का मतलब क्या होता है बेटा। देखो, evaporation के में प्रोसेस में हो क्या रहा है, वाटर वेपर में बन रहे हैं। वाटर वेपर इज अ गैस। वो गैस कहाँ जा रही है? वो हमारे एटमॉस्फेयर यानी हमारे सराउंडिंग में जा रही है, और हमारे सराउंडिंग में पहले से क्या है, एयर, है ना। इट मीन्स दैट वाटर वेपर इज गेटिंग मिक्सड विद द एयर पार्टिकल, है ना। तो यानी हम जब अभी यहाँ बैठे हैं, सपोज मैं यहाँ पर हूँ और या फिर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपके सामने भी एयर में वाटर वेपर होंगे, एंड दैट वाटर वेपर मेक्स द ह्यूमिडिटी, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड ह्यूमिडिटी, इट मीन्स, ठीक है। अब देखो, जितने ज्यादा वाटर वेपर होंगे हम बोलेंगे उतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, और जितने कम वाटर वेपर हम बोलेंगे आज एयर ना बड़ी ड्राई सी है, ह्यूमिडिटी नहीं है वहां पर। गॉट इट? सो व्हाट इज ह्यूमिडिटी? द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन दिस एयर, दैट इज ह्यूमिडिटी, ठीक। अच्छा, एक और चीज समझो, कभी भी बारिश के बाद जब एकदम से बहुत तेज धूप आ जाती है तो कैसा लगता है, बहुत स्टिकी सा फील होता है ना, ऐसे स्मेल सी आती है सब जगह से, है ना। और फिर हम क्या बोलते हैं, कितनी ह्यूमिडिटी आज, ओहो बड़ी ह्यूमिडिटी है, होता है। यस, व्हाई? बिकॉज आफ्टर ड्यूरिंग रेन व्हाट हैपेंड, देयर वाज एवरीवेयर वाटर, रोड, मतलब ग्रास, ट्रीज, एवरीवेयर देयर वाज वाटर। अब जैसे ही सन आया तो टेम्परेचर मिला, टेम्परेचर से क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ते ही सारे के सारे वाटर वेपर एकदम से हमारे सराउंडिंग में एयर में आ गए, तो ह्यूमिडिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और वही वाटर वेपर हमारी स्किन में आके से स्टिक होते हैं, हम वैसी स्वेटिंग हो रही होती है उसमें फिर स्टिक करते हैं, तो बड़ा फिर वी फील अनकंफर्टेबल। गॉट इट? सो ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज इन द रेनी सीजन, होता है ना। यस, लेट्स अंडरस्टैंड। Amount of water vapor present in the air is known as humidity. The amount of water vapor in the air is more on rainy day, so rainy days are more humid. इसकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है आपको कि कितनी ह्यूमिडिटी है? न्यूज़पेपर, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट देता है, ठीक है। स्कूल में भी न्यूज़ पढ़ते होंगे तो सुना होगा वहाँ पे, टुडेज ह्यूमिडिटी लेवल भी 78%, टुडेज ह्यूमिडिटी लेवल भी लाइक 47%, लाइक दिस, ठीक है। चलो, नाउ फ्रॉम दीज concept, that is evaporation and humidity, we have to solve a mystery or a puzzle you can say, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है पजल। वाओ, सच आइस कोल्ड वाटर, अगर गर्मी में मिल जाए तो मजा आ जाते हैं, है ना। और अगर ये कोल्ड वाटर की जगह पे अगर ब्लैक, ऑरेंज ऐसा कुछ कलर हो जाए जूस का, है ना, कोक का, तो फिर तो है ना और मजे। चलो, सो नाउ इन दिस ग्लास ऑफ वाटर वी हैव पुट सम आइस ऑन, देन यू हैव टू फिल आउट दिस ऑब्जर्वेशन टेबल। आपने जैसे ही वाटर में पानी आइस डाला, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, यू हैव टू राइट डाउन, ठीक है। अब ऑब्जर्व आपने क्या किया, सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही आइस डालेंगे तो सबसे पहले
टेम्परेचर विल डिक्रीज। होगा कि नहीं होगा? सबसे पहले जो आइस डालेंगे उससे क्या होगा? वाटर टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। इसके बाद ऐसा कुछ दिखेगा, व्हाट इज इट? वही वाटर ग्लास है, बाहर से छोटे 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 वाटर वेपर्स ड्रॉप्स आ रखे हैं, वाटर की ड्रॉप्स। ठीक है, ऐसा दिखा है कभी? कभी भी अगर आप फ्रिज से कोई बॉटल निकाल लो या कोई ठंडा वाला बर्तन निकाल लो और उसको छोड़ दो तो थोड़ी देर में उसके बाहर ना पूरा लिक्विड सा आ जाता है। Why that liquid is it? That is the second observation. So first of all, let me write it. Second observation is small water droplets outside the walls of glass. है ना? ये सेकेंड ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, अगर ऐसा ग्लास अगर कहीं पढ़ाई कर रहे हो और आपकी बुक्स और नोटबुक्स के आसपास हो फिर तो गए। क्या होता है? थोड़ी देर में वो सारे नोटबुक्स और बुक्स सारी गीली हो जाती हैं। होती है ना? क्या होता है? बिकॉज इफ यू विल कीप इट फॉर लॉन्गर टाइम दीज स्मॉल स्मॉल ड्रॉप्स विल बिकम बिग, और वो बिल्कुल ऐसा ना पूरी बड़ी वाली ड्रॉप बन के नीचे गिर जाती हैं, तो नीचे सारा पानी पानी सा हो जाता है। होता है ना? यस। सो थर्ड ऑब्जर्वेशन विल बी देयर विल बी लॉट ऑफ वाटर सराउंडिंग अराउंड द ग्लास, isn't it? So these are the three observations that you might see in this. Now I wonder, अब ये I wonder वाला टेबल ना आपको भरना है, क्योंकि आप क्या वंडर कर रहे हो वो तो आपको देखा पता होगा ना। ठीक है, तो एनसीईआरटी का ये वाला टेबल आप खुद भरोगे। गॉट इट? अच्छा, इसको समझने के लिए आगे चलते हैं। लेट्स से अगेन द सेम पिक्चर, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल ग्लास ये वाला मैंने ले लिया है। इन दिस ग्लास देयर इज नॉर्मल वाटर, नो आइस, नॉर्मल वाटर। इन दिस ग्लास सेम, उसमें हमने आइस डाल दी। अब मुझे बताओ, ये वाला ग्लास, ये वाली कंडीशन क्या आपको फर्स्ट वाले ग्लास से मिल सकता है? इस वाले ग्लास से क्या ये मिलेगा फर्स्ट वाले से? नो। व्हाई? बिकॉज हियर द टेम्परेचर ऑफ दिस ग्लास इज नॉर्मल, इट इज एट रूम टेम्परेचर, है ना? यहां वाले ग्लास में क्या हुआ? जैसे ही हमने आइस डाला क्या हुआ? टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, है ना? अब इस चेंज से क्या फर्क पड़ रहा है? देखो, हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था? एयर में क्या है? ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर। सो इन सारे ही ग्लास के सराउंडिंग में देयर आर स्मॉल 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 व्हाट वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ये देखो सब जगह मैंने वाटर वेपर बना दिया। नाउ वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट। गॉट इट? अब इस ग्लास का टेम्परेचर तो रूम टेम्परेचर पे पानी है ना? वेपर्स आर ऑल्सो देयर एट रूम टेम्परेचर, सो नो चेंज। लेकिन यहां पर as soon as these water vapors come in contact with this chilled glass, चिल्ड ग्लास मतलब टेम्परेचर कम है इसका, है ना? तो जैसे ही ये वाटर वेपर इस ठंडे वाले पानी के ग्लास के बाहर आते हैं तो क्या करते हैं? ये कंडेंस होना शुरू कर देते हैं। देखो, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, लेकिन टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वही वेपर वापस पानी बनते हैं ना? बनते हैं, कंडेंसेशन। यस। सो व्हाट हैपेंस? एनर्जी यानी हीट एनर्जी लेके वो बने थे गैस, अभी वही यहाँ पे जब आके ठंडे के साथ अटैच होते हैं यानी उससे कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या होते हैं? वो अपनी वो हीट एनर्जी को लूज कर देते हैं और वो कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज हैपनिंग? दीज एक्स्ट्रा वाटर वेपर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग दे कंडेंस बैक एंड गेट्स अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ द कंटेनर और द ग्लास, यू कैन से। ठीक है, अगेन इस एक्टिविटी के बेसिस पे देयर इज अ क्वेश्चन, डेफिनेटली यू विल सी इट इन योर एग्जामिनेशन, पक्का, या तो अभी या तो फाइनल में। देखो क्या है? प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन टू द मास ऑफ द कोल्ड वाटर केप्ट ऑन द डिजिटल वेइंग बैलेंस। एक्टिविटी में करना क्या है? आपने पहले इस ग्लास को लेना है, वेइंग बैलेंस पे रखना है, उसको मेजर कर लेना है। लेट्स से इट इज 300 ग्राम। इस ग्लास का पूरा मास कितना निकला? 300 ग्राम। फिर आपने उसमें आइस डालनी है, तो लेट्स से आइस डालने के बाद ये हो गया 350 ग्राम। अब आइस डालते ही 350 ग्राम हो गया। अब इसके आगे आपको हर 5 मिनट्स में उसका वेट को मेजर करना है। ठीक है, अब हाफ एन आवर के बाद बताना है, सोचना है कि ये मास इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या फिर सेम रहेगा, या फिर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, या फिर कुछ भी हो सकता है। ओके, सो दिस इज द एमसीक्यू क्वेश्चन इटसेल्फ। तो यहां बताओ क्या होगा? ये 350 ग्राम था और आफ्टर हाफ एन आवर लेट्स से यहां पर एटलीस्ट 100 ड्रॉपलेट्स यानी 100 वाटर वेपर्स आगे कंडेंस हो गए, तो क्या होगा बताओ? मास इंक्रीज नहीं होगा? होगा ना? अंदर का मास तो वैसे का वैसा ही है। दीज आर द एडिशनल विच आर अटैच्ड टू द ग्लास नाउ।
So you will definitely observe some increase, maybe 30, 351 और 351.2, कुछ भी ऐसा increase आपको मिल सकता है, मिलेगा. There will be definitely a increase. Decrease नहीं होगा, same भी नहीं रहेगा. ठीक है. So here the process of condensation is taking place and इसके पीछे क्वेश्चन भी आता है why. देखो MCQ क्वेश्चन मैंने बता दिया 1 मार्कर का. दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, what will happen, तो you will say the mass will increase. नाउ उसके आगे वाई, गिव रीजन, तो 2 मार्कर क्वेश्चन बनता है. ठीक है. देखो द मास ऑफ द कोल्ड वाटर विल इंक्रीज, 1 मार्क्स, बिकॉज के आगे आंसर लिखने पे अगेन 1 मार्क्स. देयर इज एडिशनल मास ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द कंटेनर. ठीक है. एंड दैट एडिशनल ड्रॉपलेट्स आर एक्चुअली द कंडेंस्ड वाटर वेपर्स. सिंपल. ठीक है. चलो. सो दिस वाज ऑल द एक्टिविटी एंड द पॉसिबल क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्टिविटी. करेक्ट. अच्छा, ये कंडेंसेशन प्रोसेस और कहाँ देखते हैं हम, ये तो ग्लास में हमने समझ लिया. इसके अलावा कहीं और हमने कंडेंसेशन प्रोसेस अपनी डेली लाइफ में देखी है? देखो दूध के पतीले के ऊपर अगर ढक्कन लगा दो तो कंडेंसेशन होता है, ये आपने शुरू से पढ़ा हुआ है ना. और कहाँ देखा है? नेचर में. ये देखो ऐसा कुछ देखा है. व्हाट इज दिस? मॉर्निंग ड्यू, है ना. क्वेश्चन, व्हाई मॉर्निंग ड्यू, व्हाई ड्यू इज विजिबल ओनली इन द मॉर्निंग टाइम, नॉट इन द आफ्टरनून टाइम? कभी सोचा है? देखो आफ्टरनून टाइम पे क्या होता है, सन होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है ना. मॉर्निंग टाइम पे टेम्परेचर कम होता है. अब कंडेंसेशन के लिए टेम्परेचर कम हो चाहिए, तो हमेशा दिस मॉर्निंग ड्यू इज विजिबल इन द ग्रास और द लीव्स और व्हाटएवर इन द मॉर्निंग टाइम ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर्स. एम आई क्लियर? चलो कंडेंसेशन का डेफिनेशन एक बार देख लो. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड स्टेट. ठीक है. चलो अब हमको पता पड़ गया कि हम वाटर वेपर से वाटर मिल सकता है बाय द कंडेंसेशन. तो साइंटिस्ट रुकते थोड़ी हैं. That's why the discoveries happens, isn't it? So scientists made one machine. क्या नाम है उसका? AWG. ठीक है. What is AWG? AWG is atmospheric water generator. एटमॉस्फेयर में से हम किस तरीके से वाटर निकाल सकते हैं, समझो. एटमॉस्फेयर में क्या है? ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी मीन्स वाटर वेपर्स. So from that water vapors we are generating water, drinkable water. दैट इज द मशीन. ठीक है. इसका फुल फॉर्म अपने आप में 1 मार्क्स का क्वेश्चन फॉर एज एन MCQ और द शॉर्ट आंसर्स में आ सकता है एज अ 1 मार्कर. ठीक है. सो एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर AWG इज अ मशीन दैट कलेक्ट्स वाटर फ्रॉम ह्यूमिड एयर टू प्रोड्यूस ड्रिंकेबल वाटर. ठीक है. पानी, पीने वाला पानी बनता है इससे. इंपॉर्टेंट. गॉट इट. चलो अब हमने क्या देखा था, ये वी सॉ द स्टेट्स ऑफ वाटर. हमने मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन देख लिया था. नाउ वी गॉट टू नो दैट अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो यही वाटर वेपर विल गो इनटू कंडेंसेशन एंड यू विल गेट व्हाट? वाटर. ठीक. नाउ अगेन दिस होल स्लाइड इज गिविंग यू 2 मार्क्स. यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है. ऑल द पिक्चर्स विल बी गिवन एंड यू हैव टू फिल दीज ऑल चेंजेस, कन्वर्जन्स. ठीक. विद करेक्ट स्पेलिंग. सो हाफ मार्क्स ईच, तो 2 मार्कर. करेक्ट. यहाँ पे ये सारे ब्लैंक्स दे देंगे आपको लिखना पड़ेगा मेल्टिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड दिस फ्रीजिंग. गॉट इट. चलो मूविंग अहेड. So now we are going for properties of different states of matter. See, we got to know that how this conversion is taking place between these 3 states, yani ice to water, water to gas, and then back. Now we have to check the properties, how they are different from each other. है ना. कौन सी ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो एक दूसरे से उनको अलग करती हैं. टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट, let's go to our activity zone. Right now in this glass, transparent glass, I am having cube shaped ice. If you can check it out, it is cube shaped ice. Now when I have kept it in the glass, what is the shape of the glass? Cylinder. But what is the shape of the ice? It is cube. If I will transfer this all ice here, now is there any change in the shape of ice? Until and unless it is melting. So what we got to know, that ice means solid can retain their shape. So they have a fixed shape. If I'll take a round ice, it will remain in its round shape. I have taken here a cube shape ice. So now it is maintaining its shape. Got it? We also need to check it out that whether the ice that is a solid can flow or not. Now, if I will throw this ice on the floor, will this ice spread? Water will spread. When this ice will melt, then it will spread. But will you be able to see that this ice is spreading itself and going here and there? No. Solids, because they retain their shape, they cannot change their shape.
Solids cannot spread, they cannot flow. Okay? Let's check out the same activity with the liquids as well. Got it? Here I am having right now liquid in this corner, in the cylindrical glass, and it is 100 ml. Now what is the shape of the liquid? So you will say it is cylindrical in shape. Why? Because the container is cylindrical. Got it? Now if I want to transfer it in this bowl, now check out the shape. Now is it still cylindrical? अभी भी cylindrical है? No. Right now it has taken the shape of this bowl. Isn't it? Now why it is happening? Why the liquid is changing the shape? Because liquid can spread. Liquid can spread. So it can spread to the walls of the container. जहां तक कंटेनर की वॉल होगी वहां तक वो स्प्रेड करके पहुंच जाता है. So that's why it spread and takes the shape of this cylindrical glass. It spread and take the shape of this round bowl. But same water if I'll spread on floor, तो वो कहां तक जाएगा? जहां तक वो वॉल का कॉर्नर होगा. अगर पानी उतना होगा तो, है ना? तो water can spread. Also, why it can spread? Because water can flow, है ना? Right now in this bowl, I have taken hot water, hot boiling water. From this water, steam is coming up. Can you see some steam? Yes. Now, what is happening to the steam? Is there any shape of the steam? Can you define any particular shape of the steam? No. Gas do not have any particular shape. And also, why you can justify it? Because the gas just spread in the atmosphere. Wherever the surrounding, gas is just spreading it out. Isn't it? Yes, because of the property that gas can flow and it can spread, gases do not have any fixed shape. I hope with the help of this activity you got a clear understanding and you got to know the difference between the properties of this ice, water and water vapor. Okay? So let's quickly fill up this table. Okay, so what we got to know? The shape of solid is fixed. है ना? The liquid shape is not fixed, and they take the shape of container. Isn't it? Liquids take the shape of the container. Gases, no shape. Because we can't keep them intact in one container. They will just spread out. Okay. Ability to flow. Solid can't flow. No. So you can say can't flow or no also. Liquids, yes. Liquids can flow. Yes. Solid gases, yes. But very high. Comparison to liquid and gases, which can flow faster? Gases. है ना? Next, ability to spread. Again, no. Solid can't spread. Solid remains at their own shape. Liquids, yes, they can spread. Gases, highly they can spread. So again you have to write down yes and very high. Got it? So these three properties we got to know with the help of activity. Am I clear? Chalo. Now we are coming to the next topic, that is evaporation. But evaporation तो हमने पढ़ लिया था अभी, पढ़ा था ना? Why this is here again? Okay. There we got to know about evaporation as a conversion process. हमने वहां पे क्या पढ़ा था? वो convert कैसे कर रहा है liquid से gaseous state में, यानी कि water vapor में. Here we have to get into the detail of evaporation and you have to see कि evaporation को हम किस तरीके से increase या decrease कर सकते हैं. ठीक है? For understanding this, let's again go to our activity zone. Welcome to our activity zone once again, and here we are going to check out whether we can increase or decrease evaporation or not. First of all, quickly recall what is evaporation, the phenomenon in which water gets transformed into water vapors. And second, it takes place at room temperature also. It means if the water is kept in this bowl, it is evaporating, which I am not able to see. है ना? अब मुझे पूरा पानी evaporate करना है, तो कितना वेट करना पड़ेगा मुझे? 3 days, है ना? मैक्स टू मैक्स सिर्फ 3 days मुझे यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा इसके साथ, है ना? Okay, so right now I'm going to do something and you have to find out whether evaporation is increasing or not. Okay, here we go. Now, the same amount of water which I have boiled. Now, what is happening? Evaporation is increasing or not? Yes. When the temperature of the water increases, then the evaporation is also increasing. So this is one of the way by which evaporation can increase. So if there is any question where you can see the difference in temperature, you have to say that wherever the temperature is high, evaporation will be more, isn't it? Now what else we can do?
if I will somehow make more and more space for this water vapor, what I'm doing? I'm blowing air. With blowing air, what is happening? जैसे ही हम इस पे एयर ब्लो करते हैं तो जितना भी एरिया ये स्टीम ने लिया हुआ है यानी वाटर वेपर ने लिया हुआ है वो स्टीम को हमने भगा दिया यहाँ से, तो ये पूरा का पूरा एरिया क्या हुआ? खाली। तो उससे क्या होता है? मोर एंड मोर वाटर वेपर्स आर कमिंग अप। सी वंस अगेन, नाउ सी अगेन, so much of steam is coming up. So you must have seen, if you want to evaporate, if you want to dry your clothes especially during the winters, where you put them? Under the fan. Yes, yeah, because outside there is no temperature. At least when you keep them under the fan, with the flow of air, evaporation increases and you can dry your clothes. Okay. To understand the third activity, first of all, you should know what is humidity. है ना? Humid air, you know, yes, water vapor present in the air. Got it? Now suppose there are two containers and from these two containers, I want the evaporation to take place. Now, in which condition the evaporation will be faster? If I will keep these two far or if I will keep these two near, when the evaporation will be faster? Any guess? इसको समझने के लिए let me give an example. Let's say I tell you to go around in one of the empty class and take a round and run. बड़ा easy है, कर लोगे ना? हाँ। और वहीं पर एक दूसरी क्लास है जहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं with their bags, table, benches, everything. Now I tell you to go and run. Will it be difficult? Yes, because the space has been already occupied by the particles. वहाँ पे पहले से पार्टिकल प्रेजेंट हैं, तो आपको अपने लिए स्पेस बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा कि नहीं? Now when we are merging them, the space around here is already taken by the water vapors which are coming from this bowl, है ना? इस बॉल वाले वाटर वेपर्स ने ऑलरेडी जगह ले ली। अब अगर यहाँ से भी ये वाटर वेपर आना चाहते हैं तो क्या होगा? They will find it difficult, isn't it? So what we can conclude? Humidity. It is creating humid air, है ना? When humidity is high, evaporation decreases. अभी यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो अगर और इवेपोरेशन चाहते हैं आप तो वो नहीं होगा, कम हो जाएगा, है ना? लेकिन अगर इनको दूर रख लो तो यहाँ की ह्यूमिडिटी कम है, यहाँ की ह्यूमिडिटी कम है, evaporation is taking place properly. Am I clear? I hope with the help of this activity, you got to know the factors on which evaporation is depending. Now we will discuss some questions and along with that, we will discuss the activities that we have just done also. Question: why do clothes dry faster on a hot sunny day? This is a 1 marker question. Hot sunny day, hot, so temperature is increasing. We just got to know that evaporation increases with increase in temperature. Just this line 1 marks. ठीक है? So evaporation increases with increase in temperature. पढ़ लिया हमने. Next, second question. Does cloth dry faster or slower on a windy day? Why? So this is 1 marker and this is again 1 marker. So total 2 marker question. ठीक है? ये कितना है? टोटल 2 मार्कर. अगर पहले तो डज क्लॉथ ड्राई फास्टर और स्लोअर? फास्टर, so 1 marks. Why? Because just we got to know that evaporation increases with increase in wind speed. Yes, so evaporation increases with increase in wind speed. This will give you 1 more marks, so 2 marker. ठीक है? Next, why clothes dry slowly on a rainy day? Since beginning I'm telling you, rainy day, more humidity, lots of water vapor. If already lots of water vapor, तो evaporation से और water vapor कैसे जाएंगे, है ना? देखो क्या आंसर है. On a rainy day, water evaporates slowly due to high humidity in air, है ना? If the amount of water or if the amount of humidity is already high, water evaporates slowly. ठीक है? Okay. So these are the factors that we have understood on which evaporation is depending. Now we have to go for the cooling effect of evaporation. You will be surprised to know that due to evaporation, the object from where the evaporation is taking place, it remains cool. ठीक है? समझते देखो कैसे होता है. देखो ये क्या है? ये है एक घड़ा, मटका, है ना? किसका है ये? स्टील का. अच्छा, ये देखो, ये भी मटके ही हैं. These are also pot, but these are earthen pots, है ना? मिट्टी के घड़े. अब मुझे बताओ, गर्मियों में इनमें से किस में आपने पानी रखा हुआ देखा हुआ है? Where we store water? You must have seen in these two. अच्छा, ये दोनों ही मिट्टी के घड़े हैं ना, लेकिन इनका नाम अलग अलग है, पता है आपको? The longer one is known as सुराही. ये आपकी पिक्चर एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए 1 मार्क में आ सकता है. इसका पिक्चर दे देंगे, बोलेंगे नाम बताओ इसका क्या है. सुराही.
ठीक है. सो दिस इज सुराही, दिस इज नॉर्मल मटका. नाउ व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, वेयर यू विल कीप वाटर ड्यूरिंग द समर्स. ऑब्वियसली हियर, यहाँ कोई नहीं रखता. बताओ क्यों? बिकॉज यहाँ पे बोलते हैं कि पानी ठंडा होता है. अब ये तो बात वो है जो हमें पता है. अब नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाई इट हैपेंस. ठीक है, देखो. अच्छा, इसको आगे समझते हैं. ये देखो यहाँ पर, ये बॉय, दिस बॉय इज ड्रेंच्ड इन स्वेट. खेल के आए होंगे बाहर से, फुटबॉल खेला और बिल्कुल पसीने में ड्रेंच्ड. नाउ ही इज सिटिंग अंडर द फैन एंड एंजॉइंग. वाह, क्या ठंडा लग रहा है. होता है ना, अगर ड्यूरिंग द समर टाइम इफ यू विल जस्ट सिट अंडर द फैन विदाउट एनी स्वेट, यू विल फील कोल्ड, नो डाउट. लेकिन अगर वहीं पर आपको स्वेटिंग हो रही है और फिर आप फैन के नीचे बैठे हो तो आपको बहुत एकदम ठंडा लगता है. वाई? ऑल द इज बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन. अंडरस्टैंड. देखो होता क्या है बेटा, इन दीज टू पॉट्स व्हाट इज द डिफरेंस? दिस इज मेड अप ऑफ मेटल, है ना, और ये बहुत थिक लेयर है. इसके बीच में कोई छोटे छोटे पोर नहीं होते, यानी पानी किसी भी तरीके से बाहर नहीं आ सकता यहाँ से, अनटिल अनलेस देयर इज अ क्रैक. अंदर डाल के, हाथ डाल के निकाल सकते हो, लेकिन बाहर ऐसे तो नहीं आएगा, है ना. लेकिन इन अर्दन पॉट्स देयर आर स्मॉल स्मॉल पोर्स. तो उन स्मॉल स्मॉल पोर्स से होता क्या है, धीरे धीरे वाटर बाहर सीप होके आ जाता है सरफेस पे. कभी भी मिट्टी के घड़े में अगर पानी रखा हो तो देखना कि मिट्टी का घड़ा हमेशा बाहर से गीला गीला सा फील होता है ना, बाहर तक पानी होता है उसमें. गॉट इट? नाउ व्हाट हैपेंस ड्यू टू दिस? अगर ये इस वाले पॉट में सिर्फ ऊपर का एरिया खुला है तो यानी इवेपोरेट होने के लिए वाटर को सिर्फ ये वाली जगह मिल रही है. सिर्फ यहां से इवेपोरेशन हो सकता है ना. यहां पर इधर से भी इवेपोरेशन हो सकता है, प्लस ये सारी साइड से इवेपोरेशन हो सकता है ना, हो सकता है. सो लॉट्स ऑफ सरफेस एरिया इज देयर फॉर इवेपोरेशन. ठीक है, अब दोबारा से फटाफट इवेपोरेशन को रिकॉल करो. हमने क्या पढ़ा था? इवेपोरेशन कब होता है? जब इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि इवेपोरेशन होने के लिए वाटर पार्टिकल्स को थोड़ी सी हीट एनर्जी चाहिए होती है. पढ़ा था? होता है ना? यस. अब यहां पर इन पार्टिकल्स को इवेपोरेट होने के लिए हीट एनर्जी कहां से मिलेगी? हम एक्स्ट्रा जाके वहां पे फायर के ऊपर तो रखेंगे नहीं कि भाई जल्दी इवेपोरेट हो जाओ, ठंडा कर दो पानी को, उल्टा गर्म हो जाएगा, है ना. तो यहां पर क्या होता है, दीज पार्टिकल्स ट्राई टू स्नैच द एनर्जी. छीनते हैं ये अपने से, अगल बगल वाले की एनर्जी को छीन के चले जाते हैं. ठीक है, जिनको भागना होता है. तो ये क्या करते हैं, ये ऑल वाटर वेपर्स, दे ट्राई टू टेक अवे द हीट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग. अब सराउंडिंग में क्या है? खुद मटका ही तो है ना. तो यानी कि ये इस अर्दन पॉट की ही जो थोड़ी बहुत हीट एनर्जी होगी उसको लेके भाग जाते हैं. अब लेके भाग गए तो होगा इवेपोरेट, है ना. अब किसी की एनर्जी लेके भाग जाओगे तो वो बेचारा कमजोर पड़ जाएगा ना. अब किसी की अगर हीट एनर्जी लेके भागोगे तो वो तो ठंडा पड़ जाएगा. सो दैट्स व्हाई द अर्दन पॉट बिकम्स कूल, और उसके अंदर का पानी भी फिर ठंडा हो जाता है. गॉट इट? सो व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द कूलिंग इफेक्ट? The cooling effect of evaporation is whenever water evaporates, it takes the energy from the surrounding, leaving that object or the body cool. है ना. जिस बॉडी से इवेपोरेट हो रहे हैं उसी की एनर्जी लेके भाग जाते हैं और फिर उसको ठंडा करके चले जाते हैं. ठीक है, ये बॉय को देखो, अगर ये इसमें अभी स्वेट नहीं होता तो सिर्फ हवा लग रही होती, है ना. लेकिन बिकॉज द होल बॉडी इज कवर्ड विथ स्वेट, स्वेट इज वाटर, है ना, तो वाटर विल इवेपोरेट. अब वाटर अगर इवेपोरेट होगा तो उसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी लेके भागेगा किसकी? बॉडी की. अगर बॉडी की एनर्जी लेके भागेगा तो एनर्जी कूल, यानी बॉडी कूल हो जाएगी, तो हमको ठंडा फील होता है. तो कूलिंग इफेक्ट. एम आई क्लियर? सो ऑन दिस बेसिस अगेन देयर आर सम क्वेश्चंस दैट यू विल सी इन योर एग्जामिनेशन. डेफिनेटली एक तो बनता है. ठीक है, क्या? व्हाई आवर पाम फील कोल्ड? एसीटोन का भी अगर नेल पेंट रिमूवर, सैनिटाइजर कुछ भी अगर हाथ में डाला हो तो बहुत ठंडा फील होता है. क्यों होता है? बिकॉज दे ऑल इवेपोरेट्स वेरी क्विकली. इवेपोरेट करेंगे तो एनर्जी लेके भागेंगे किससे? पाम से. सो एसीटोन, और क्या यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ? हाँ, एसीटोन. सो एसीटोन इवेपोरेट्स वेरी क्विकली एंड इट टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द पाम, लीविंग इट कूल. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाई वाटर केप्ट इन अर्दन पॉट? बता दिया. हाउ डज स्वेटिंग मेंटेन द टेम्परेचर? During sweating, the sweat try to evaporate by taking the energy from the body, leaving it cool. हर जगह पे सेम आंसर है. ठीक है, बस वो ऑब्जेक्ट को चेंज कर देना है, बॉडी, अर्दन पॉट या फिर पाम, कुछ भी. ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, मैंने वैसे समझा दिया. क्या है? 2 स्टेप में आंसर लिख लो. ड्यू टू इवेपोरेशन द वाटर पार्टिकल्स कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर. फॉर दिस वाटर टेक्स द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, लिविंग इट कूल. ये 2 लाइन का आंसर सब जगह लिख दो, फुल मार्क्स. ठीक है, चलो. नाउ पॉट इन पॉट कूलर. ये डायग्राम पक्का बनवाया होगा, पक्का है,
क्योंकि नोटबुक में बुक में दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट डायग्राम है तो नोटबुक में बनवाया होगा, ठीक है। व्हाट इज दिस? पॉट इन पॉट कूलर। ये है हमारा देसी रेफ्रिजरेटर, ठीक है। कैसे बनता है? एक बड़ा वाला मिट्टी का पॉट ले लो और एक छोटा वाला ले लो। छोटे वाले को बड़े वाले के अंदर डालो और बीच में क्या करना है? सैंड डालना है। सैंड इज हेयर फॉर इंसुलेशन, है ना। सैंड अगर डालेंगे तो वो हीट को अंदर बाहर जाने नहीं देता, उसको रोक देता है थोड़ी देर के लिए। तो अब इस सैंड में हमने डालना है वाटर। सैंड को पूरा गीला कर देना है फुल, ठीक। फिर क्या होगा? नाउ हमें पता है कि अर्दन पॉट में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। अगर जैसे ही सैंड गीला होगा तो पानी बाहर को सीप करेगा, सारा का सारा पानी कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे आएगा तो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा तो क्या होगा? पॉट कूल हो जाएगा, है ना। नाउ वंस द पॉट इज कूल, हियर द सैंड इज फॉर इंसुलेशन, यानी वो हीट को ज्यादा अंदर बाहर नहीं आने दे रहा। एक बार ठंडा हो गया तो ठंडा ही रहेगा फिर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप कुछ वेजिटेबल या फ्रूट्स अगर डाल के रखोगे तो वो काफी दिनों तक फ्रेश रहते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज गिवन ऑन विच फैक्टर दिस फ्रेशनेस विल डिपेंड। मींस ये वेजिटेबल कितने दिन फ्रेश रहेंगे, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। बेटा देखो, अगर नॉर्मल गर्मियों में हमारा जो नॉर्मल रेफ्रिजरेटर होता है वो भी काम नहीं करता अच्छे से, है ना, उसमें भी चीज़ें खराब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट। तो ऑब्वियसली ड्यूरिंग समर्स इट विल नॉट बी वेरी इफेक्टिव, है ना। दूसरा, अगर रेनी सीजन होगा तो रेनी सीजन में इवेपोरेशन कम हो जाता है, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा होती है, वैसे फंगस लग जाता है, तो वहां पर भी ये काम उतना नहीं करता, ठीक है। उसके अलावा वाटरिंग, अगर वाटरिंग करना भूल गए, आज वाटर करा, अब ड्यू टू इवेपोरेशन धीरे धीरे वाटर तो सारा खत्म हो जाएगा ना सैंड का, तो उसकी वाटरिंग भी जरूरी है। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स ऑन विच दिस पॉट इन पॉट कूलर वर्किंग डिपेंड्स। Am I clear? चलो, moving ahead. Next we are going for water cycle. This is the last topic of the chapter. Very easy. 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, बेसिक सारे डिटेल पता है, लेकिन 6th क्लास में आके आपको ये पढ़ना है कि कोई भी चीज हो क्यों रही है, यानी रीजन बिहाइंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, ठीक है। नाउ क्विकली, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज वाटर साइकिल? द साइकिल ऑफ वाटर इन द environment, in the surrounding, in the atmosphere, that is water cycle, है ना। कैसे वो एक साइकिल के फॉर्म में पूरा सर्कुलेट हो रहा है, उसी को वाटर साइकिल बोलते हैं। ये पिक्चर बहुत फेमिलियर हो गई। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वाटर बॉडीज, यानी कि जहां पर भी वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर बॉडीज, सी, लेक, ओशन, है ना, वाटर बॉडीज। इन वाटर बॉडीज से क्या हो रहा है? ये ऊपर को इवेपोरेशन। सो दिस इज इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, है ना। अब इवेपोरेशन में होता क्या है? वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन ये आपको समझना है कि व्हाई दीज वाटर वेपर्स आर गोइंग अप, ठीक है। टू अंडरस्टैंड दिस, कभी हॉट एयर बलून देखा है? हॉट एयर बलून में क्या होता है? वो हमेशा ऊपर जाता है। द प्रॉपर्टी इज हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप, ठीक है। इसके पीछे जो बेसिक और रीजन है वो है डेंसिटी का, लेकिन अभी इतना ही समझ लो कि हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप। अब हमने अभी क्या देखा था? वाटर से वाटर वेपर कब बनते हैं? जब वो किसी की हीट एनर्जी लेके भाग जाते हैं। अब अगर कोई किसी से अगर 100 रुपीज लेके भाग गया, इसका मतलब उसके पास वो 100 रुपीज है ना, है, यस। तो सेम थिंग, अगर ये किसी की हीट एनर्जी लेके भागे हैं तो इसका मतलब उनके पास हीट एनर्जी है, इट मीन्स दे आर हॉट देन नॉर्मल एयर। तो हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप, सो दैट्स व्हाई वाटर वेपर ऑलवेज राइजेज अप, ठीक है। सो दिस इज द रीजन। इसके लिए बुक में ये दिया हुआ है आपने, डू यू नो ऑल्सो व्हाई डज एयर कंटेनिंग वाटर वेपर गोज अप इन द एटमॉस्फेयर? बिकॉज इट इज हॉट, हॉट एयर ऑलवेज राइजेज अप, ठीक है। नेक्स्ट, अब ऊपर गए, ऊपर जाते जाते एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पे बिल्कुल वो ठंडा हो जाएगा, एंड एज द टेम्परेचर विल डिक्रीज, कंडेंसेशन प्रोसेस। तो यहां पर क्या होता है? कंडेंसेशन। ना कंडेंसेशन क्यों होता है? कभी भी देखो, माउंटेन पे जाओगे तो आपको बर्फ मिलेगी, कभी भी दिल्ली में या फिर मुंबई में आपको बर्फ नहीं मिलेगी, है ना। इट ऑलवेज यू विल फाइंड इट इन दी हायर एल्टीट्यूड्स। एवरेस्ट ऑलवेज कवर्ड विद द आइस। तो जितना हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज होते ही क्या होता है? कंडेंसेशन, एंड दैट्स व्हाई कंडेंसेशन इज टेकिंग प्लेस। नाउ आफ्टर कंडेंसेशन ऑल द वाटर ड्रॉपलेट्स आर कलेक्टिंग देयर। जैसे ही उनका कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां से वो नीचे प्रेसिपिटेट होते हैं। तो व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब रेन, है ना। अब रेन ही जरूरी नहीं है ना, है ना। कई जगह क्या होता है? स्नो भी फॉल होता है, या फिर वो जो हेल्स होते हैं वो भी गिरते हैं, क्या बोलते हैं उनको? ओले, है ना। सो स्नो, हेल्स और या फिर रेन, दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। मूविंग अहेड, नाउ आफ्टर प्रेसिपिटेशन द वाटर विल फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड। और ये क्या होगा? जैसे ही स्लोप मिलेगा तो सारा का सारा पानी अगेन रन ऑफ,
इसको बोलते हैं रन ऑफ वाटर। ये रन ऑफ कहाँ जाता है? अगेन दोबारा से वाटर बॉडीज में चला जाता है ना। लेकिन क्या सारा वाटर रन ऑफ हो जाता है? नो, सम वाटर गोज डाउन इनसाइड द अर्थ सरफेस बाय सीपिंग। एक्चुअल नाम क्या है? इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन के थ्रू ये प्रोसेस, ये सारे के सारे जो वाटर, थोड़े बहुत वाटर होता है वो नीचे अंडरग्राउंड जाता है, और ये क्या है? अंडरग्राउंड वाटर, ठीक है, विच विल ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द वाटर बॉडीज। गॉट इट? अंडरग्राउंड वाटर से हम वो निकालते हैं, हैंड पंप से पानी कभी देखा है? वो कहां से आ रहा है? अंडरग्राउंड वाटर से ही आते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल, एंड विद दिस वी आर डन विद द चैप्टर एज वेल. I hope you got a proper understanding. All the concepts were clear, but still, if you're having any doubt, you can always comment. I will try to revert back there only. Okay. Now, like and subscribe. Don't forget that. Spread the video among your friends and stay tuned for further updates. Bye bye. Take care.